حادثے کی وجہ سے ہماری نشریات جو ہیں وہ خصوصی نشریات میں کنورٹ ہو گئی ہیں، جس کے لیے ہم چلیں گے اسرار صاحب کی طرف جو کنٹینیو کریں گے۔ بہت شکریہ عشرت ثاقب صاحبہ۔ ناظرین، یہ افسوسناک حادثہ جس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اور اس وقت ہمارا دونوں ڈویژن جو ہیں، کرنٹ افیئرز اور نیوز ڈویژن، دونوں ہر طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ تمام جو تفصیلات ہیں وہ شیئر کر سکیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ ابھی ہمارا رابطہ ہو تسنیم اسلم صاحبہ کے ساتھ، جو کہ ترجمان ہیں دفتر خارجہ کی، اور ان سے ہم اس کی مزید تفصیلات لیں۔ ان کو بھی ہو سکتا ہے کہ انڈین اتھارٹیز کے ساتھ انٹریکشن ہوا ہو اور انہوں نے کچھ بتایا ہو، ہم ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ 64 سے زائد افراد جو ہیں وہ اس میں ابھی تک اطلاع آئی ہے کہ ہلاک ہو سکتے ہیں، اور زخمیوں کی بھی ایک بڑی تعداد ہے جو وہاں پہ مختلف ہاسپٹلز میں اس وقت جن کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ ایک بہت ہی افسوسناک حادثہ، اس کی تفصیلات آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 11:55 پر یہ سلسلہ شروع ہوا۔ پانی پت کے علاقے میں سونی پت کا جو ریلوے اسٹیشن ہے اس سے 5 کلومیٹر پہلے ایک دیوانہ گاؤں ہے، وہاں پہ یہ حادثہ ہوا ہے۔ بھارتی وقت کے مطابق 10:45 پر نئی دہلی سے یہ ٹرین روانہ ہوئی لاہور کے لیے، ٹاری کے لیے ایکچولی، اور 11:55 پر آگ اس میں اچانک بھڑک اٹھی اور دھماکے ہوئے، اور 2 بوگیاں جو ہیں وہ مکمل طور پر جل گئیں۔ اور اس میں جو ہماری اطلاعات ہیں اس میں ابھی تک یہ ہے کہ ابھی انڈین اتھارٹیز جو ہیں وہ اس ٹرین کا جو سارا جائزہ لے رہی ہیں، تحقیقات جو ہیں وہ جاری کر دی گئی ہیں، اور امدادی کام جو ہے وہ شروع ہے۔ ہم اس کے ساتھ ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا رابطہ ہو چیئرمین ریلوے جناب شکیل درانی صاحب کے ساتھ، ان سے بھی بات کریں گے اور ان سے بھی تفصیلات لیں گے کہ ان کو کیا اطلاعات مل رہی ہیں انڈین ریلوے حکام کی طرف سے، اور کیا کیا چیزیں ہیں جو، اور کیا کیا اطلاعات ہیں جو وہ شیئر کر رہے ہیں ان کے ساتھ۔ اس میں میری جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق 600 سے زائد جو مسافر تھے وہ اس ٹرین پہ موجود تھے، اور اس ہم دیکھ رہے ہیں کہ شکیل درانی صاحب سے بھی رابطہ ہو اور تسنیم اسلم صاحبہ کے ساتھ بھی ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس سے زیادہ ہلاکتیں بھی ہو سکتی ہیں ناظرین، اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، لیکن خدشہ ہے کہ اس سے جو تعداد ہے وہ بڑھ بھی سکتی ہے۔ اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں ناظرین کہ جو وار آن ٹیرر کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، اس کی قیمت جو ہے وہ ہمیں پاکستان کو کتنی زیادہ دینی پڑ رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حکومت پاکستان اس بارے میں ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ سب سے زیادہ اگر قربانی کسی ملک نے دی ہے تو وہ پاکستان ہے۔ اور یہاں پہ ہم یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ یہ جو صورتحال ہے اس میں پاکستان کی قربانیوں کو ایکنالج کیا جانا چاہیے، اور پاکستان نے ہر طریقے سے قربانی دی ہے، اور ابھی آپ یہ دیکھ لیں کہ جو آج کا بھی حادثہ ہے یہ بھی اسی کا ایک شاخسانہ ہے، جس کی سزا جو ہے ظاہر ہے کہ پاکستان کو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پاکستان کا جو کردار ہے اس کے حوالے سے کسی آدمی کو یا کسی حکومت کو شکوک میں یا شبے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو سلسلہ ہے، یہ ناظرین آج جو حادثہ ہوا ہے اس کی تفصیلات ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، اور اس میں جیسے کہ ہماری بات ہو رہی تھی افتخار گیلانی صاحب کے ساتھ، اور بڑی انہوں نے ایک میں کہتا ہوں کہ پرٹیننٹ انفارمیشن دی، اور وہ یہ تھی کہ جو اس کو لاک کر دیا گیا تھا اس کی وجہ سے یہ جو دھماکے ہوئے اس میں لوگ باہر نہیں جا سکے، اور یہ بھی بات کہ 5 جو بامز تھے وہ تھے اس میں جو پکڑے گئے ہیں وہ بھی اس میں موجود ہیں۔ اب یہ دیکھنا کہ وہاں پہ لوگ جو ظاہر ہے کہ دہلی سے وہاں پہ اس ٹرین میں بیٹھے تھے ان کی سیکیورٹی کیوں نہیں کی گئی، یہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے جو میرا خیال ہے کہ ہماری اتھارٹیز کو انڈین اتھارٹیز کے ساتھ ٹیک اپ کرنا چاہیے کہ جناب جب وہاں سے لوگ لائن اپ ہو رہے تھے اور لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور جب وہ ٹرین کے اوپر بیٹھنے لگے تو ان کا سامان کیوں نہیں چیک کیا گیا؟ اگر بریف کیس میں 5 بم تھے تو کم از کم ان کو دیکھا جانا چاہیے تھا اور ٹریس کرنا چاہیے تھا۔ اب ہمارا رابطہ ہوا ہے جناب تسنیم اسلم صاحبہ کے ساتھ، ترجمان ہے دفتر خارجہ کی۔ تسنیم اسلم صاحبہ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ تسنیم اسلم صاحبہ، ایک افسوسناک حادثہ آج سمجھوتا ایکسپریس کا آپ کو معلوم ہے، کچھ تفصیلات آپ کو ملی ہیں انڈین اتھارٹیز سے؟ جی ابھی تو ہمارے پاس زیادہ ڈیٹیلز نہیں ہیں جی، ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ 266 لوگ جو ہیں 64 لوگ جو ہیں وہ ریزرو سیٹس پہ ٹریول کر رہے تھے، باقی وداؤٹ ریزرویشن تھے۔ ہم اسرٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں سے کتنے پاکستانی تھے، لیکن یہ ایک ایکٹ آف ٹیررزم ہے، ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ اس میں بہت سی قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا ہے۔ ہم جو فیملیز ہیں ان کے ساتھ ہماری ہمدردی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت کے
علاقے میں اس ٹرین کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنا بھارتی حکومت کی ذمہ داری ہے، اور ہم یہ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بھارت اس کو انویسٹیگیٹ کرے گا اور جو لوگ اس ٹیررسٹ ایکٹ کے لیے رسپانسبل ہیں ان کو پنش کیا جائے گا۔ ہمارے ہائی کمیشن سے ایک 3 ممبر ٹیم جو ہے وہ چل پڑی ہے پانی پت کے قریب، یہ حادثہ ہوا وہاں کے لیے، اور وہ وہاں پہ لوگوں کو جو پاکستانی ہیں ان کو اسسٹنس پرووائڈ کریں گے۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ کا انڈین اتھارٹیز سے کوئی رابطہ، کوئی تفصیلات اس طرح ابھی تک شیئر نہیں کی انہوں نے آپ کے ساتھ؟ جی، وہ ہمارا ہائی کمیشن کے ساتھ ان ٹچ ہے۔ ایک جیسے کہ میں نے کہا کہ جو 264 ریزرو سیٹس تھیں ان پہ ہم اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کون کتنے پاکستانی تھے، تو ٹوٹل اس میں 604 پیسنجرز تھے۔ وہ بھی اب کرنا پڑے گا کہ وہ تھوڑا کمپلیکیٹڈ پروسیس ہے، کیونکہ لوگ بغیر ریزرویشن کے جو ٹریول کرتے ہیں وہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے آئیڈینٹی امیڈیٹلی ان کا اسٹیبلش کرنا، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں، ہمارے ہائی کمیشن سے لوگ بھی چل پڑے۔ اچھا، یہ بغیر ریزرویشن کے تسنیم صاحبہ کیسے لوگ اس میں ٹریول کر سکتے ہیں؟ جنہوں نے پاکستان آنا ہوتا ہے انہیں ریزرویشن نہیں کروانی پڑتی؟ کرتے ہیں لوگ اس پہ۔ جی، اور یہ بتائیے گا کہ ابھی یہ جو ہماری اطلاعات کے مطابق اس کا ایک عجیب سا سیٹ اپ ہے کہ جب وہ دہلی سے یہ ٹرین چلتی ہے تو اس کو سیل کر دیا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے پتہ چلا کہ جب وہ آگ لگی تو لوگ باہر نہیں نکل سکے، نہ چھلانگیں لگا سکے، بالکل وہ سیلڈ تھے اور وہ اندر ہی بیچارے جھلس کے ہلاک ہو گئے۔ جی، یہ بھی ایک مسئلہ ہے جس کو دیکھنا پڑے گا، لیکن یہ ٹرین جو ہے اس پہ سیکیورٹی ہونا چاہیے تھی، اور ہم یہ بھارتی حکومت سے امید رکھتے ہیں کہ وہ سمجھوتا ایکسپریس کو اپنے علاقے میں سیکیورٹی بھی پرووائڈ کرے گی۔ اور یہ کیسے ہوا، یہ اسپیسیفک انسیڈنٹ جو ہے، انفارچونیٹ انسیڈنٹ، یہ کیسے ہوا، اس میں اتنی جانیں ضائع ہوئیں، اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے بھارتی حکام، اور جو لوگ بھی اس کے رسپانسبل ہیں ان کو پنش کریں گے۔ بہت شکریہ تسنیم اسلم صاحبہ، بہت شکریہ، آپ سے انشاءاللہ رابطہ رہے گا۔ تھینک یو۔ تسنیم اسلم صاحبہ دفتر خارجہ کی ترجمان ہمارے ساتھ موجود تھیں، اور وہ بتا رہی تھیں کہ اس میں 604 جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ لوگ موجود تھے۔ ایک اور نقطہ جو سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ 264 ریزرو سیٹس، اور اس میں کچھ لوگ نان ریزرو بھی تھے، اور یہ ایک عجیب سی بات ہے جو سامنے آئی ہے۔ ہم ایک ذرا تھوڑا سا جمپ لیتے ہیں، واپس اب اسلام آباد سے چلتے ہیں لاہور، اور بات کرتے ہیں محمد خالد صاحب کے ساتھ جو کہ ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ ہیں پاکستان ریلویز کے، اور ان سے بات کرتے ہیں۔ خالد صاحب السلام علیکم۔ جی السلام خالد صاحب، آپ ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ ہیں، یہ مجھے بتائیے گا کہ کچھ تفصیلات آپ کے پاس آئی ہیں تھرو انڈین چینلز؟ جی کیا ہیں وہ؟ یہ ہے جی کہ ہماری وہاں سے سمجھوتا ایکسپریس جو ہے نا، دلی ایکسپریس کے نام سے انڈیا سے چلتی ہے جی، اور یہ دلی اور اٹاری کے درمیان ہفتے میں 2 دفعہ چلتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور جب یہ دیونا اسٹیشن سے چلی ہے 23:05 پہ جی، دیونا اور پانی پت کے درمیان اس میں 2 گاڑیوں میں آگ لگ گئی۔ ہمیں اطلاع ملی کہ یوں آگ لگی ہے، اور اس میں اس وقت بتایا گیا تھا جی کہ 2 کیجولیٹیز ہیں اور 8 زخمی ہیں۔ یہ کس وقت کی بات بتا رہے ہیں آپ؟ جی، یہ کس وقت آپ کو بتایا گیا تھا؟ یہ مجھے تقریباً کوئی 3:30 بجے بتایا گیا تھا، 3:30 بجے۔ اٹاری اسٹیشن کا جو اسٹیشن سپرنٹینڈنٹ ہے نا جی، وہ ہے میدان سنگھ، اس نے بتایا تھا۔ یہ جی ان آفیشیل ہے، مجھے ابھی صحیح ڈیٹیل نہیں ملی۔ ٹھیک ہے، میں بہت کوشش کرتا رہا کہ کسی سینئر بندے سے بات ہو جائے، ٹھیک ہے، مگر بات میں ہوئی۔ پھر تقریباً کوئی 7 سوا 7 بجے جو انڈین ریلوے کا DRM ہے نا، ڈویژنل ریلوے مینیجر وی کے گپتا، اس سے بات ہوئی۔ اچھا، اس نے بتایا جی کہ 64 بندے کی موت ہو گئی ہے اور 13 انجرڈ ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور اس میں جو انجرڈ، جو سیریس انجرڈ ہے، ان کو انہوں نے وہاں پہ جو دلی ہاسپٹل میں انہوں نے ڈیٹین کر لیا۔ ابھی مجھے جو لسٹ ملی ہے نا، اس میں 13 بندے جو سیریس انجرڈ تھے، اس کو انہوں نے وہاں ہاسپٹل شفٹ کر لیا ہے۔ اچھا، یہ کس ہاسپٹل میں شفٹ کیا جی ان کو؟ یہ کون سے ہاسپٹل میں؟ یہ دلی ہاسپٹل میں۔ اچھا، دلی ہاسپٹل میں۔ اور ابھی یہ 11 بجے کہہ رہے ہیں جی کہ اٹاری گاڑی پہنچے گی جی، اور ہم ان سے باقی جو سیریس انجرڈ ہیں ان کی بھی لسٹ لے رہے ہیں جو ہمیں حوالے کریں گے واگا میں۔ تو واگا میں ہم نے پورا وہ ارینجمنٹ کیا ہوا ہے، وہاں ہمارا جو میڈیکل آفیسرز ہیں وہاں ہم نے 2-3 ٹمپریری میڈیکل ایڈ دینے کے لیے وہاں پہ بوتھ بنا لیے ہیں،
اور باقی उनकी जो ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त कर लिया वहाँ पे। अच्छा, इसके बाद आपका उनसे राब्ता नहीं हुआ? क्योंकि अभी तक को जो मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ, DRM का जो है ना रेलवे का वी के गुप्ता से बात हो जाए, मगर उसका फोन बंद है। अच्छा जी, और अटारी से बात हो रही है, वो हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बता रहे। अच्छा, अटारी से आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही? नहीं, वो कह रहे जी कि हमें उन्होंने कोई इतला देने की मिजाज नहीं है, हमारा सीनियर अफसर ही आपको बताएगा। वो सुबह से हम ना उनका एक है विनोद भाटिया, उससे भी 2-3 दफा ट्राई किया मगर उसने भी हमें नहीं बताया। ये विनोद भाटिया साहब क्या है? टोटल 757 पैसेंजर थे जी, और इसमें पाकिस्तानी 553 पाकिस्तानी थे और 204 इंडियन थे। टोटल कितने आप बता रहे हैं? 757 टोटल थे, जिनमें इंडियन और पाकिस्तानी दोनों थे। जी जी, जिसमें 553 पाकिस्तानी थे और 204 इंडियन थे। ठीक है, और ऑफिशियल है, और जो हमें उन्होंने बताई है, ये विनोद भाटिया ने बताया हमें, DTO ने। अच्छा, ये आप उनको कोट कर रहे हैं? जी जी, विनोद भाटिया, ये अच्छा, उन्होंने हमें बताया। 553 पाकिस्तानीज हैं और 204 इंडियंस हैं। जी जी। तो इस जो 2 बोगियां जिनमें आग लगी है, जो थी ना वो 64 की जो डिटेल्स, वो अभी उन्होंने हमें नहीं बताई। अभी तक आपको कंफर्म नहीं किया उन्होंने? जी जी। अच्छा, आपका उनसे मुसलसल राब्ते में है, लेकिन मुसलसल राब्ता तो ना हुआ ना? मुझे ये बताएं खालिद साहब, हमारा जो है ना SS अटारी जी, हम उससे ही बात कर सकते हैं ना? नहीं, लेकिन मुसलसल राब्ते का मतलब तो यह है कि आपको वो लम्हा बलम्हा रिपोर्ट कर रहे हो। अभी नहीं बता रहे, तो फिर मुसलसल राब्ता तो ना हुआ ना खालिद साहब? लेकिन वो ये ट्राइंग ओवर बेस, हमने 2 बंदे बकायदा मुसलसल टेलीफोन वो मिला रहे हैं, वो उनका जो VK गुप्ता का नंबर है वो बंद है। VK गुप्ता साहब के अलावा किसी लोगों को आप ट्राई करने की कोशिश करें? जिससे हम राब्ता करते हैं। विनोद भाटिया साहब क्या हैं? ये विनोद भाटिया उनके DTO हैं, डिवीजनल ट्रांसपोर्टेशन ऑफिसर। ठीक है, चलें खालिद साहब, आपसे इंशाल्लाह राब्ता रहेगा जी। अगर कोई इन्फॉर्मेशन हो तो मुझसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू जी। मोहम्मद खालिद साहब, जनाब DS पाकिस्तान रेलवेज, वहाँ पे लाहौर में उनसे बात हो रही थी। और अब चलते हैं इंडिया और बात करते हैं शोभना सिंह से, और जो रिपोर्टर हैं वहाँ पे और हादसे की जगह पे मौजूद, उनसे बात करते हैं। शोभना जी, कैसी हैं आप? हेलो जी शोभना जी, आदाब जी। अच्छा शोभना जी, मुझे बताइएगा कि ये क्या अभी कुछ लेटेस्ट आपके पास इनकी इंफॉर्मेशन आई है इस हादसे के बारे में? अभी इंफॉर्मेशन यही है कि ये जो डिवाइस यहाँ पर यूज किया गया था वो टाइम डिवाइस था। क्या ये टाइम बॉम्ब था, अभी इस बात का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। और ये भी पता चला है कि 5 बोगियों को उड़ाने की साजिश थी, जिसमें से 2 बोगी तो उड़ाने में कामयाब रहे, लेकिन 3 बोगियों में से बॉम्ब बरामद किए गए हैं। ठीक, आप इस वक्त वहाँ पे एक्सीडेंट की जगह पे मौजूद है ना? जी बिल्कुल। तो क्या वहाँ पे क्या सूरत हाल है? इंडियन अथॉरिटीज क्या कर रही हैं? लोगों को हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा है, या जो लोग वहाँ पे दूसरी बोगियों में मौजूद थे वो कहाँ पे हैं? देखिए, जो उन बोगियों में जो बोगियां जलकर खाक हो गई हैं, उन बोगियों में जो लोग मौजूद थे उनमें से ज्यादातर लोगों की मौत हो गई है और उनके शवों को निकालकर हॉस्पिटल क्या है, और उसमें से 13 लोग जो जिंदा बचे हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं। उन्हें हॉस्पिटल पहले से पानीपत के सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया था, अब दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में ले जाया गया है। इसके अलावा जो और बोगियां थी जिनमें से कुछ लोग घायल हो गए थे, मामूली घायल थे, उनको अंबाला में फर्स्ट एड दिया गया और बाकी की बोगी को अटारी की तरफ रवाना कर दिया गया। अच्छा, ये बताएं कि ये जो जहाँ पे ये हादसा हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, ये दिल्ली से कितनी दूर है? ये दिल्ली से करीब 65-70 किलोमीटर दूर है, पानीपत के पास ये दीवाना स्टेशन है। दीवाना स्टेशन से जैसे ही गाड़ी लगभग रात 11:55 पे जब मैं निकली तो उसमें एक धमाके की आवाज हुई और उसके साथ ही 2 बोगियों में आग लगनी शुरू हो गई। और आग इतनी ज्यादा थी कि उसमें जितने भी मौजूद लोग थे वो संभलने का उनको मौका नहीं मिला और उनकी इस हादसे में मौत हो गई। ठीक है, और आपको इस बात का पता चला है कि ये जो इंडियन अथॉरिटीज की जो सिक्योरिटी में लैप्स नजर आ रहा है कि वहां पे आदमी जाहिर है कि दिल्ली से ही चढ़े होंगे ये लोग, क्योंकि दरमियान में तो वो सील्ड था सारा कुछ, तो ये इंडियन सिक्योरिटी का लैप्स नहीं है? देखिए, जहां तक अगर इस हादसे की बात मानी जाए तो कहीं ना कहीं लैप्स जरूर दिखाई दे रहा है, खामी जरूर दिखाई दे रही है, क्योंकि दिल्ली के बाद ये ट्रेन सील हो जाती है और उसके बाद किसी भी यात्री को चढ़ने की इजाजत नहीं होती है। तो निश्चित तौर पर जो भी खामी हुई है, जो भी लैप्स हुआ है वो दिल्ली से हुआ है, वहीं से लोग चढ़े हैं। जी बिल्कुल ठीक है। शोभना जी, आपके साथ राब्ता रहेगा, आप प्लीज यहीं पे रहिएगा, हम आपसे इंशाल्लाह तफसीलात लेते रहेंगे जी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। शोभना सिंह हमारे साथ मौजूद थी, जाए हादसा पे मौजूद थी।
اور بتا رہی تھیں کہ وہاں پہ کیا صورتحال تھی، اور ٹائم ڈیوائس انہوں نے کہا کہ یہ 5 بوگیوں کو اڑانے کی ایک سازش تھی جس میں 2 اڑیں اور 3 ناکام ہو گئیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں چیئرمین ریلوے جناب شکیل درانی صاحب کے ساتھ، اور ان سے پوچھتے ہیں کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے۔ شکیل درانی صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ شکیل صاحب، کچھ پتہ چلا آپ کو، کچھ آپ سے انڈین اتھارٹیز نے شیئر کی ہے انفارمیشن اس حادثے کے بارے میں؟ کیونکہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ 64 افراد جو ہیں وہ اس میں ہلاک ہو چکے ہیں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، تو کچھ لیٹسٹ آپ کے پاس ہے اس حوالے سے شیئر کرنے کی خاطر؟ یہ ہمارا جو پاکستان ریلویز کا آپریشنل سٹاف ہے لاہور میں، جی ان کا رابطہ ہے انڈین ریلوے کے جو ان کے آفیشلز ہیں جی، اور اسی طریقے سے ہمارا رابطہ ہماری ہائی کمیشن کے ساتھ بھی ہے دلی میں جی، اور وہ بات چیت ان سے ہو رہی ہے تاکہ جو بھی پیسنجرز جو واپس آئیں گے واگا ان کو ہر ایک قسم کی اسسٹنس دی جا سکے۔ ابھی ہماری بات ہو رہی تھی محمد خالد صاحب کے ساتھ جو کہ آپ کے ڈی ایس ہیں ریلویز کے، انہوں نے کہا کہ وہ کوشش کر رہے ہیں لیکن جو کنسرنڈ کوارٹرز ہیں انڈین اتھارٹیز کے ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ وی کے گپتا صاحب کا انہوں نے نام لیا، میدان سنگھ صاحب کا انہوں نے نام لیا، پھر ونود بھاٹیا صاحب کا نام لیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ ابھی تک ہمارے رابطے میں نہیں ہیں، اور جن سے رابطہ ہوا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سلسلے میں جب تک اوپر سے کوئی بیان نہیں آتا ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ تو یہ تو سینیریو کچھ تھوڑا سا ڈیفرنٹ لگ رہا ہے مجھے۔ نہیں، میری بات ہوئی ہے ہمارے ہائی کمشنر کے ساتھ نیو دہلی میں، اور ہائی کمیشن کے کوئی آفیشل جا رہے ہیں، ہائی کمیشن کے آفیشل سائٹ پہ جا رہے ہیں جی، اور اسی طریقے سے پاکستان ریلویز کے 2 سینئر آفیسرز ان کے بھی فارن آفس نے بات کی ہے انڈین ہائی کمیشن سے، وہ بھی جتنا جلدی ممکن ہو وہ جائیں گے انڈیا تاکہ جو ریلیف ہے اور آپریشنل میٹرز ہیں ان سے بات چیت کر سکیں۔ یہ لاہور سے جائیں گے؟ جی لاہور سے جائیں گے ہمارے۔ اور یہ کب روانہ ہوں گے؟ جی کب روانہ ہوں گے؟ جی جو ان کو فارمیلٹیز ٹائی اپ ہو جاتی ہیں تو وہ بھی جائیں گے تاکہ جو انڈین ریلویز کے آپریشنل سٹاف ہے ان کے ساتھ جو آپریشن میٹرز ہیں ان پہ بات چیت ہو سکے۔ اچھا، یہ جو ٹرین جو اب اٹاری پہنچ رہی ہے اور پھر وہاں سے پاکستان آئے گی، تو ان کے لیے آپ نے لاہور پہ کچھ انتظامات کیے ہیں؟ لوگوں کو وہاں پہ ظاہر ہے کہ لوگ پریشان ہوں گے، ان کے رشتہ دار وہاں پہ پریشان ہیں، تو کیا انتظامات کیے ہیں آپ نے؟ جی، ہم نے ہاٹ لائنز اسٹیبلش کی ہیں جو کہ ٹی وی پہ ابھی آ رہی ہیں۔ جی 3 ہاٹ لائنز ہیں، اس کے علاوہ 7 ہاٹ لائنز ہیں جی جو کہ ہم ٹیلی ویژن پہ اس کو ٹیلی کاسٹ کر رہے ہیں جی، اور جو ہمارا سٹاف ہے لاہور میں ہم نے ایمبولینسز بھی بھیجی ہیں واگا، اسی طریقے سے ان کے ریسیپشن کے لیے جو فیسلٹیز امینٹیز ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں وہ ہم دے رہے ہیں، اور میڈیسن، خوراک، فرسٹ ایڈ جو کچھ بھی ضرورت ہوگا ہم دے رہے ہیں، اور فیڈرل منسٹر ریلویز وہ بھی ادھر جا رہے ہیں، اور باقی جو ہمارے سینئر آفیسر ہیں۔ فیڈرل منسٹر فار ریلویز کہاں جا رہے ہیں جی؟ واگا ان کو ریسیو کرنے کے لیے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ فیڈرل منسٹر فار ریلویز بھی جا رہے ہیں، آپ نے انتظامات کر لیے ہیں۔ ایک چیز مجھے ذرا بتائیں شکیل درانی صاحب کہ وہاں پہ جو بھی ابھی تک تفصیلات آ رہی ہیں اس میں جو چیز سامنے ابھر کے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ انڈین سیکیورٹی کا لیپس ہوا ہے، اور وہاں پہ دہلی کا جو اسٹیشن ہے وہاں پہ لوگوں کو چڑھتے ہوئے میرا خیال ہے کہ بالکل ریلیکس قسم کی سیکیورٹی تھی، جس کی وجہ سے وہ بریف کیس اور ٹائم بم وغیرہ اٹھا کے چلے گئے، کیونکہ اس کے بعد تو پتہ چلا کہ سیل کر دیا جاتا ہے۔ 2 چیزیں اس میں ہیں، ایک تو یہ بتائیں کہ سیکیورٹی کا لیپس جو ہے وہ اس طرح کیوں ہوتا ہے، اور دوسرا یہ بتائیں کہ ٹرین کو سیل کیوں کر دیا جاتا ہے؟ دیکھیں، یہ جو ایشوز ہیں اس کا مجھ سے تعلق فی الحال نہیں ہے، اور ہمارا سارا جو کانسنٹریشن ہے اس وقت اس بات پہ ہے کہ جو پیسنجرز ہیں جو پاکستان واپس آتے ہیں ان کو ہر ایک قسم کی فیسلٹی دی جائے، اور ہمیں کیجولٹیز کا بھی جو اطلاع ہے وہ میڈیا سے ہے، کوئی آفیشیل ذرائع سے نہیں ہے، تو ہمارا کنسرن ابھی یہ ہے کہ جو پیسنجرز ہیں ان کی دیکھ بھال کریں۔ لیکن ہمارا کنسرن شکیل درانی صاحب معذرت کے ساتھ ہمارا کنسرن یہ ہے کہ یہ ایسا کیوں ہوا ہے؟ میری بات آپ سن لیں جی، سنائیے۔ یہ جو باقی ایشوز ہیں یہ جو ریلیونٹ اتھارٹیز ہیں ان کی بات آپ ان سے کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔
चलें ठीक है, आपसे बात तो होती रहेगी, लेकिन ये चेयरमैन रेलवे साहब का एटीट्यूड है। और आप ये देखें कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जांचने की कि ये जो सूरत हाल है ये क्यों ऐसे हुई है। हम लोग जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनसे ये बात टेकअप करें। आज पूरे पाकिस्तान का जो दिल है वो धड़क रहा है इस हवाले से, और दुख है इस पूरे पाकिस्तानी कौम को कि एक सिक्योरिटी का लैप्स हुआ है वहाँ पर, और जिसकी वजह से हमारे जो तादाद तकरीबन 64 के करीब बन चुकी हुई है वो हिलाक हुए हैं इस हवाले से। और हम लोग अभी तक ये बात करने के लिए तैयार नहीं है कि इसको कैसे टेकअप किया जाएगा। हमारी बात जब अभी तस्नीम असलम साहिबा के साथ हुई है तो उन्होंने भी ये कहा कि हम इसको समझते हैं कि इसकी जो जिम्मेदारी है वो इंडियन हुकाम के ऊपर आती है, और इस तरह के हादसे जो हैं, अब अगर खुदा न खास्ता वहाँ पे कोई हादसा होता है तो वो ऑटोमेटिकली हम पे उसका इल्ज़ाम डाल देते हैं और कहते हैं जी कि ये पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। तो अब चूँकि वहाँ पे हादसा हुआ है, उसमें सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, तो हमें भी थोड़ा सा ये बताने की ज़रूरत है कि जनाब अपनी सिक्योरिटी को आप बेहतर बनाएं, क्योंकि इसमें नुकसान हमारा भी है और आपका भी है। और अगर आप सिक्योरिटी को बेहतर नहीं बनाएंगे तो ज़ाहिर है कि लोग जो हैं वो उसमें से उसको मॉनिटर करते रहते हैं। जब वो देखते हैं कि इसमें से पियर्स थ्रू किया जा सकता है और उसको फॉइल किया जा सकता है पूरे के पूरे सिक्योरिटी निज़ाम को, तो वो पूरा जो एक सेटअप है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ के उसको बाईपास करके तो वो इस तरह की जो भयानक एक्टिविटीज़ हैं वो कर लेते हैं। हमारी जब बात हुई है उनसे शकील दुरानी साहब के साथ, उन्होंने ये भी कहा कि हाई कमीशन की जो टीम है वो साइट पर जा रही है, और 2 अफराद जो हैं वो पाकिस्तान रेलवेज़ के भी वो वहाँ पे जाएंगे और मौके पर जाके देखेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 7 हॉटलाइंस जो हैं वो वहाँ पे इस्टेब्लिश हुई हैं लाहौर में और कराची में भी, तो वहाँ पे भी लोग जो हैं वहाँ पे इनको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा तस्नीम असलम साहबा ने यह भी कहा कि तकरीबन 264 लोग जो थे वो रिज़र्व सीट्स पे थे, और इसके अलावा देखा यह जा रहा है कि कितने लोग जो थे वो नॉन रिज़र्व सीट्स पे बैठे हुए थे। ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि इस तरह की गाड़ी में ऐसे लोग क्यों मौजूद थे कि जिनके पास रिजर्वेशन नहीं थी। ये भी एक बात है। उन्होंने ये भी कहा कि हम इसको कंडेम करते हैं, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इट इज़ एन एक्ट ऑफ टेररिज्म। ये भी उनके अल्फाज थे। सिक्योरिटी उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा कि भारतीय हुकूमत की जिम्मेदारी है, ऑब्वियसली, क्योंकि वो भारतीय साइड पे ट्रेन चल रही है, तो उसको पाकिस्तान को हैंड ओवर करना सिक्योर तरीके से ये भारत की जिम्मेदारी है। हाई कमीशन की उन्होंने कहा कि 3 रुकनी टीम जो है वो चल पड़ी है, और वो जाए हादसा पे जाएगी पानीपत में, और वहाँ पे जाके अपना जो काम है वो देखेगी। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम भारतीय हुकूमत से उम्मीद करते हैं कि सिक्योरिटी को बेहतर बनाए। तो मेरा ख्याल है कि चेयरमैन रेलवे साहब को भी इस मामले में थोड़ा सा अपने जो काउंटर पार्ट्स हैं उनसे भी बात करनी चाहिए, और उनसे कहना चाहिए कि अपने जो मामलात हैं उनको दुरुस्त करने की कोशिश करें। ये मामला बहुत नाजुक है, और इसमें हमें सबको मिल के एक ऐसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए जो कि इंडिया और भारत दोनों के लिए बेहतर हो, और उसमें जज्बाती होने के बजाय मेरा ख्याल है कि हमें वी मस्ट फेस द रियलिटीज़, और जो रियलिटी है वो ये है कि सिक्योरिटी लैप्स नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगर कोई बात होती है तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अभी तक की जो भी रिपोर्टिंग हुई है, जो भी लोगों ने बताया है उसके नज़र में, और मेरा ख्याल है कि ये नाजरीन भी बड़े अच्छे अंदाज से इसका एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें सिक्योरिटी लैप्स नज़र आ रहा है, और बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स नज़र आ रहा है। हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो माशाल्लाह अपना काम कर रही हैं, और इधर से जब हम ट्रेन भेजते हैं तो उसमें पूरे तरीके से उसको देखा जाता है कि कोई उसमें कोई मसला ना हो, और हर शख्स को घंटों के हिसाब से, अगरचे ये बड़ा तकलीफ दे मरहला होता है, लेकिन घंटों लग जाते हैं, और सिक्योरिटी के मसले जो हैं उसको ठीक तरीके से आगे तक लेके जाया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ भारत को भी ये चाहिए कि वो भी अपना सिक्योरिटी अपैरेटस जो है उसको बेहतर बनाए और इन मामलात को हल करने की कोशिश करे। इससे पहले हम बात कर रहे थे मोहम्मद खालिद साहब जो कि DS हैं पाकिस्तान रेलवेज़ के। उन्होंने ये भी बताया कि उनसे मुख्तलिफ लोगों की बात हुई है। उन्होंने बताया कि मैदान सिंह साहब हैं कोई उनके इंडिया के रेलवेज़ के, उनसे भी बात हुई, और फिर VK गुप्ता साहब जो कि DRM हैं उनसे बात हुई है, और फिर विनोद भाटिया साहब जो उन्होंने कहा कि डिविजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर हैं, उनसे भी बात हुई है। तो इस हवाले से हम मज़ीद लोगों से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश है कि जितनी भी तफसीलात हैं नाज़रीन आपके साथ शेयर की जा सकें और आपको बताया जा सके कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। लाहौर से हमें जब पता चला तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे मेडिकल बूथ वगैरह जो हैं वो लगा दिए गए हैं, वाहगा में भी इंतजाम किए गए हैं, और 11 बजे उन्होंने कहा कि ट्रेन जो है वो पहुँचेगी अटारी में, और वहाँ से फिर वो पाकिस्तान आएगी। मैं यहाँ पे थोड़े से जो नंबर्स हैं वो भी आपको बताता चलूँ एक दफ़ा फिर, ताकि आप अपडेट कर लें, और उनको जिन लोगों को ज़रूरत है वो इन नंबर्स पे कॉल्स कर सकते हैं। पहला नंबर है 0429201110, और दूसरा नंबर है 0429201692,
اور تیسرا نمبر ہے 04292057995. کراچی کا نمبر ہے 02192133528 اور 02192133529. راولپنڈی ہے 05192708990 اور دوسرا نمبر ہے 051920889. یہ بھی ذرا چیک کرنے والا نمبر ہے, ذرا دیکھنا پڑے گا کہ یہ صحیح ہے نمبر یا اس میں 9270 ہے. ذرا دیکھیے گا, اپنے میں پروڈیوسر سے کہوں گا کہ نمبر جو ہیں وہ دوبارہ ڈبل چیک کر لیں تاکہ اس میں کوئی مسئلہ نہ ہو. اور جو زخمیوں کی اطلاعات آئی تھیں ناظرین, وہ دوبارہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اب تک کی جو اطلاعات ہیں ان میں جو زخمی ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں. عبداللہ صاحب ہیں کراچی کے, اور کراچی ہی کے ناظم صاحب ہیں, راولپنڈی کے منچ خان ہیں, فیروز آباد کے خورشید خان, چہرہ آباد کے ایم دین ہیں, زینب صاحبہ ہیں, ان کی شہر کی شناخت نہیں ہو سکی ہے, ایم غوم صاحب ہیں اور ایم ہارون ہیں, ان کی بھی شہر کی جو شناخت ہے وہ نہیں ہو سکی. ابھی یہ دیکھنا پڑے گا کیونکہ ابھی تفصیلات آ رہی ہیں, اٹس این آن گوئنگ سٹوری, اور یہ ابھی چلتا رہے گا سلسلہ, اور اللہ کرے کہ مزید جو ہلاکتیں ہیں وہ ان کی خبر نہ آئے, اور جو زخمی ہیں وہ اللہ کرے کہ وہ ٹھیک ہو سکیں. اور ناظرین آپ بھی دعا کریں کہ یہ جو حادثہ ہے اس کا نقصان یہیں پہ تھم جائے اور آگے نہ بڑھے, اور جو بھی نقصان ہوا ہے اس میں ہم جتنا بھی ہو سکے ان کے لیے دعا کر سکیں, اور ان کی مدد کے لیے جو لوگ زخمی ہیں, اور خاص طور پہ وہ لوگ کہ جو لواحقین ہیں جو یہاں پہ لاہور اور واہگہ میں موجود ہیں, ان کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہوگی. ہماری جو ریلوے کی ٹیمیں ہیں وہاں پہ موجود ہیں, اس کے علاوہ میڈیکل بوتھ لگا دیے گئے ہیں, اور وہاں پہ جو زخمی ہیں, زخمی تو خیر دہلی ہاسپٹل میں ہیں اور مختلف دوسری جگہوں پہ ہیں, لیکن جو لوگ باقی اس ٹرین میں تھے وہ اب پہنچنے والے ہیں وہاں پہ اٹاری, اور ادھر سے پھر یہ آئیں گے واہگہ, اور واہگہ میں پاکستانی اتھارٹیز جو ہیں وہ ان کا استقبال کریں گی, اور ان کو ایک جو سوالس ہے, ایک جو تسلی دینے کا ایک پروسیس ہے وہ ہوگا وہاں پہ. اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ فیڈرل منسٹر فار ریلویز جناب شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود ہوں گے اور ان کا استقبال کرنے کی خاطر وہاں پہ جا رہے ہیں. ہماری جب بات ہو رہی تھی ان کی ایک رپورٹر شوبھنا سنگھ سے, تو انہوں نے بتایا کہ ٹائم ڈیوائس یہ لگایا گیا تھا اور کوشش کی گئی تھی کہ 5 بوگیوں کو اڑانے کی کوشش کی جائے, اور جس میں وہ مکمل طور پہ تو نہیں ناکام ہوئے, 2 بوگیوں کو انہوں نے ٹارگٹ بنا لیا, اور جو 3 تھیں وہ اس لیے نہیں بن سکیں کہ وہ جو ٹائم ڈیوائسز تھیں وہ پکڑی گئیں, اور اس وجہ سے وہ جو ہے ایک فوائل ہو گیا منصوبہ. تو یہ صورتحال ہے ناظرین. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا رابطہ مزید لوگوں سے ہو, اور اگر کوئی تفصیلات ہمارے پاس آئیں تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلے جائیں. اور جب بات ہو رہی تھی ہماری تسنیم اسلم صاحبہ کے ساتھ, تو انہوں نے بتایا کہ 604 ٹوٹل اس میں جو مسافر تھے وہ تھے, اور 264 جو ہیں وہ ریزرو سیٹوں پہ تھے. ایک اور چیز جو میں دیکھ رہا تھا وہ اس میں یہ تھی کہ جو خالد صاحب نے ہمیں بتایا کہ اس میں ٹوٹل جو تھی تعداد وہ 757 لوگوں کی تھی, اگرچہ یہ انہوں نے انڈین اتھارٹیز کو کوٹ کیا ہے. اب یہ ایک ڈسکرپنسی ہے جس میں ہم وقت آنے پر ہی پتہ چل سکے گا کہ تسنیم اسلم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ٹوٹل 604 تھا مسافروں کی تعداد, لیکن اکارڈنگ ٹو انڈین اتھارٹیز وہ کہہ رہے ہیں کہ 757 ٹوٹل تھا, اور اس میں پاکستانیز جو تھے وہ یہ ان کے فگرز میں کوٹ کر رہا ہوں 553 تھے, اور ہم جو انڈین اس میں مسافر تھے وہ تھے 204. اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس میں حقیقت کیا ہے. اب دوبارہ چلتے ہیں بھارت, اور نیو دہلی میں بات کرتے ہیں افتخار گیلانی صاحب کے ساتھ. افتخار گیلانی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی افتخار صاحب, کچھ مزید اپڈیٹس آپ کو ملی ہیں؟ مزید اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی لالو پرساد یادو جو مرکزی وزیر ہیں ریلوے کے, انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ 64 لوگ اس حادثے میں مارے گئے ہیں, اور زیادہ تر لوگ پاکستانی ہیں اس جو حادثے میں, اور وہ اس وقت پٹنہ میں ہیں, اور پٹنہ سے وہ سیدھے اب اسپیشل فلائٹ کے ذریعے پانی پت پہنچ رہے ہیں, جس کے بعد اب مزید کوئی کاروائی کی جائے گی. اور انہوں نے جو ہے ابھی تفتیش کے بھی احکامات صادر کر دیے ہیں. ابھی سرکاری طور پر یہ تصدیق ہو چکی ہے, اور یہ ہی لیٹسٹ اپڈیٹ ہے کہ سرکاری طور پر ابھی تک تصدیق نہیں ہو پا رہی تھی اس کی کتنے لوگ مرے ہیں اور کون کون لوگ ہیں, لیکن ابھی بھی شناخت کا مسئلہ ابھی بھی برقرار ہے, اور کچھ لوگ جو یہاں پر دہلی جو ہے مزید زخمیوں کو لے آیا گیا ہے, اور یہاں سفدرجنگ ہاسپٹل میں ان کو بھرتی کر دیا گیا ہے. اچھا, اس میں یہ بتائیے گا کہ آپ کی
लालू प्रसाद यादव साहब के तो चले एक आपने बताया, लेकिन इसके अलावा कुछ रेलवे हुकाम से, रेलवे अथॉरिटी से बात हुई है? मजीद कुछ तफसीलात उस धमाके के हवाले से कुछ आई हैं? यहाँ पुलिस की ही तफसीलात आई है, पुलिस के ही बयानात आए हैं कि ये जो बम जो है इसमें अभी तक RDX का या किसी जो लेटेस्ट टेक्निक का अभी तक जो है कोई सुराग नहीं मिला है, लेकिन ये लगता है कि ये क्रूड बम ही है जो कि पेट्रोलियम और अमोनियम नाइट्रेट वगैरह के जरिए बनाया गया था। और इसमें जो है धमाके से ज्यादा लोग जो हैं झुलस कर मर गए हैं, ये भी हॉस्पिटल के जराये का भी कहना है। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार गिलानी साहब, आपसे मजीद तफसीलात लेते रहेंगे जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इफ्तिखार गिलानी साहब मौजूद थे, एक दफ़ा फिर हमने उनसे तफसीलात ली और उन्होंने सरकारी सतह पर अब बताया है कि 64 लोग जो हैं वो एक्नॉलेज किया गया है कि इसमें हिलाक हुए हैं। लालू प्रसाद यादव साहब जो कि उनके रेलवे मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बताया और उन्होंने ये भी कहा कि इसमें ज़्यादातर पाकिस्तानीज़ हैं। दिस इज़ अ बैड न्यूज़ फॉर अस। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि लालू प्रसाद यादव साहब जो हैं वो पटना से स्पेशल फ़्लाइट के ज़रिए इस हादसे की जगह पे पहुंचने वाले हैं और चल पड़े हैं और वहां पे जाके वो इसको देखेंगे कि क्या सूरत हाल है। उसकी तफ्तीश और तहकीकात जो हैं वो उसके अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ पे जो डेड बॉडीज़ हैं उनकी शनाख्त का एक मसला है। ऑब्वियसली जब उसमें झुलस गई हैं बॉडीज़ तो उसमें मसाइल क्रिएट होंगे शनाख्त के, और ये पता करना कि किसकी बॉडी कौन सी है ये एक ख़ासा बड़ा मसला होगा। तो उसमें हो सकता है कि हमें DNA टेस्ट जो हैं वो शायद हमें उनका सहारा लेना पड़े और देखना पड़ेगा कि इसमें कैसे उनकी शनाख्त की जा सकेगी। इसके अलावा पुलिस का उन्होंने बताया कि पुलिस के हुकाम से जिनसे उनकी बात हुई है वो यही कह रहे हैं कि ये क्रूड बॉम्ब्स थे जिसमें अमोनियम नाइट्रेट, पेट्रोलियम और दूसरी चीज़ें जो डाल के बनाया जाता है, और इसमें ज़्यादातर जो लोग हैं वो उन्होंने बताया कि झुलस कर हिलाक हुए हैं। एक अफसोसनाक सिनेरियो ड्रा होता नज़र आ रहा है और उसमें हम देख रहे हैं कि इंडियन अथॉरिटीज़ जो हैं वो भी अपने तौर पर इसकी तफ्तीश कर रही हैं और कोशिश कर रही हैं कि इसका कोई ना कोई सुराग लगाया जा सके। और पहली दफ़ा अभी सरकारी सतह पर ये एक्नॉलेज किया गया है नाज़रीन कि पहले हम कोशिश कर रहे थे कि पता चले सरकारी सतह पर, क्योंकि इंडियन अथॉरिटीज़ से और इंडियन क्वार्टर से हमें बिल्कुल कुछ नहीं पता चला था और हमारे लोग जो रब्ता उनसे कर रहे थे वो भी नाकामी का मुँह उन्हें देखना पड़ रहा था। लेकिन अभी पहली दफ़ा इफ्तिखार गिलानी साहब ने कन्फर्म किया कि लालू प्रसाद यादव साहब ने ये कहा है कि इसमें 64 अफराद जो हैं वो हिलाक हो चुके हैं। ये एक ख़ासा बड़ा टोल है, ख़ासी बड़ी एक ऐसी लोगों की तादाद जो कि इसका निशाना बने हैं। एक दहशतगर्दी की कार्रवाई जिसको पाकिस्तान ने कंडेम किया है। और तस्नीम असलम साहबा ने, जैसा कि आपको मालूम है कि थोड़ी ही देर पहले हमारे साथ गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम इसको कंडेम करते हैं, और उन्होंने कहा कि इट इज़ एन एक्ट ऑफ टेररिज्म, ये उनके अल्फाज थे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सिक्योरिटी की जो जिम्मेदारी है वो भारतीय हुकाम पर आती है। हम कोशिश कर रहे हैं कि मुख्तलिफ लोगों से रब्ता हो और उनसे पूछा जाए कि इस बारे में मज़ीद तफसीलात क्या हैं और क्या उनके पास इस हवाले से इंफॉर्मेशन है। हम जैसे पहले बात कर रहे थे शकील दुरानी साहब के साथ, उन्होंने बताया कि हाई कमीशन जो है वो उसमें से जो इंडिया में हमारा हाई कमीशन है पाकिस्तान का, वो उनकी जो टीम है वो साइट पर जा रही है और वहाँ पे जाके वो देखेगी कि वहाँ पे हालात क्या हैं और किस तरीके से इंडियन अथॉरिटीज़ जो हैं वो इस मामले को टैकल कर रही हैं। 2 अफराद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान रेलवेज़ के भी जो हैं वो जा रहे हैं भारत और वहाँ पे जाके देखेंगे क्या सूरत हाल। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बात हो। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इंडियन रेलवेज़ के RK टंडन, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है। RK टंडन साहब कैसे हैं जी आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। RK टंडन साहब आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इंडियन रेलवेज़ के, मुझे ये बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं। हमारी रेलवे हुकाम से बात हुई है, कुछ लोग कह रहे हैं कि 64 के करीब डेड बॉडीज़ जो हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं, आप इसको कंफर्म करेंगे? जी हाँ, हमें भी यही जो खबर मिली है उसके अनुसार 64 लोगों की को डेड बताया गया है। अच्छा, और इसके अलावा क्या तफसीलात हैं, पता चला कि क्या हुआ और कैसे हुआ? देखिए जी, इसका जो वो तो अभी इसकी तहकीकात करी जा रही है जी। हमारे पास में इसकी कोई रेलवे के पास में जो, क्योंकि जो लोग स्पॉट पे गए हुए हैं जी वो उसके बारे में बता पाएंगे। हमें तो ये पता लगा है कि इसमें जो 2 ब्लास्ट हुए हैं जिसके कारण ये जो है 64 लोगों की डेथ हो गई है और 13 लोग इंजर्ड हुए हैं जिनको कि यहाँ पे दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में और हमारे रेलवे के हॉस्पिटल में लेके जाया गया है।
अच्छा, और इसके अलावा मुझे ये जरा बताइएगा आर के टंडन साहब, यू आर द कंसर्न मैन एक्चुअली, ये जो ट्रेन है इसमें दिल्ली से लोग जब चढ़ते हैं तो उनकी क्या सिक्योरिटी का कुछ एहतमाम होता है वहां पे? देखिए साहब, ऐसा है कि जब ये लोग दिल्ली से जो लोग जाते हैं, सबसे पहले तो ये है कि जो उनको टिकट दिया जाता है वो पासपोर्ट के ऊपर दिया जाता है जी, एक बहुत बड़ी बात है। उसके बाद में जो बाकी जो जब ट्रेन चलती है जो लोग चढ़ते हैं उसमें जो भी नॉर्मल चीज का जो ध्यान रखा जाता है कि किस प्रकार जो सिक्योरिटी वगैरह का, और बाकी जो ट्रेन में जाता है वही इसके अंदर भी रहता है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि ये बहुत टाइट नहीं होती सिक्योरिटी? एक रिवायती किस्म की एक छोटा मोटा बस चेक कर लिया, हाथ लगा के देख लिया, कोई ऐसी चीज तो नहीं है, लेकिन जो डिटेल्ड सिक्योरिटी है वो शायद नहीं है वहां पे। देखिए साहब, जो डिटेल्ड जहां तक सिक्योरिटी का सवाल है कि जो जब ट्रेन में जो लोग सफर करते हैं उसके लिए जो भी जरूरी समझा जाता है कि जिस तरह की सिक्योरिटी होनी चाहिए और जो जो चीज चेक करनी चाहिए वो लोग वहां पे स्टेशन पे जो चेक हो सकता है वो कर लिया जाता है। उसके बाद में लोग जाते हैं और साथ में रेलवे का आरपीएफ का स्टाफ जाता है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का, और दरवाजे बंद करके वो एंड तक अटारी तक जाते हैं जहां की इस ट्रेन को जो दूसरी ट्रेन जो तैयार रहती है उसमें लोगों को चढ़ाया जाता है। अच्छा, ये जो इसको ट्रेन को बंद करने का सिलसिला है, इसको सील कर दिया जाता है, उसकी चाबियां किसके पास होती हैं, ये कैसे सिलसिला चलता है? उसको सील नहीं किया जाता है, उसके जो दरवाजे हैं जी उसको बंद कर दिया जाता है अंदर से, जैसे कि बाकी रहता है, ऐसा सील नहीं होता है ये। ठीक। और सिर्फ ये प्रोटेक्शन की जाती है कि जो लोग हैं वो नहीं उतरे और वो सीधे अटारी तक चले जाए। अच्छा, और शायद सील करने का ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ सील कर दिया जाए, ऐसा नहीं रहता है, और जो प्रोटेक्शन फोर्स रहती है वो साथ में चलती है और एंड तक उनको, वो लोगों को, यात्रियों को अपने साथ में लेके वहां तक पहुंचती है। अच्छा, इसमें क्या आप समझते हैं कि जब ये सिलसिला हुआ होगा तो जब ब्लास्ट हुए होंगे तो लोग बाहर नहीं निकल पाए होंगे उसी लॉक की वजह से, और वो अंदर ही झुलस के हिलाक हो गए? नहीं सब ऐसा है कि ये अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं, मेरे पास कोई इसके बारे में कोई इतला नहीं है। ठीक है, और वैसे आप ये समझते हैं कि सिक्योरिटी से आप मुतमईन थे और बाकी जो मामलात हैं वो भी सारे इंतजाम ठीक थे? हाँ जी, वो जब भी, क्योंकि गाड़ी तो ये देखिए कई साल से चल रही है और कोई ऐसी प्रॉब्लम दिक्कत नहीं आती है, लोगों को बिल्कुल ध्यान से जो लोग चढ़ते हैं उसकी जो भी एक नॉर्मल सिक्योरिटी रहती है उसका पूरा ध्यान रखा जाता है। अच्छा, कितने तादाद का कुछ अंदाजा है कि कितने लोग इसमें चढ़े हुए थे, कितने मुसाफिर थे टोटल? साहब देखिए, जो स्लीपर थे उसमें से 264 लोग थे जी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, S1, S2, S3, S4 में जी, और उसके अलावा बाकी जो हैं 390 लोगों के बारे में बताया जाता है जो कि अनरिजर्व्ड पैसेंजर थे। अनरिजर्व्ड थे जी, तो वो भी क्या पाकिस्तान आ रहे थे? हाँ, वो भी पाकिस्तान आ रहे हैं। अच्छा, ये जरा थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि रिजर्व्ड और नॉन रिजर्व्ड ये कैसे आप कैटर करते हैं? देखिए ऐसा है साहब कि जो स्लीपर, इसमें 4 स्लीपर कोचेज हैं जिसके अंदर की हर के अंदर एक 72 लोग बैठ सकते हैं जी, और उसकी जो टिकट दी जाती है उसमें कंफर्म टिकट देती है कि ये आप इस बर्थ पे जाएंगे। ठीक है। बाकी लोगों को जो जैसे आम जो टिकट दिए जाते हैं वो जो सिटिंग अकोमोडेशन रहती है उसका वो नॉन स्लीपर कोच जो है जिसको जनरल कंपार्टमेंट बोलते हैं उसके अंदर लोग जाते हैं। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि दिल्ली से अटारी तक का कितने घंटों का सफर है? दिल्ली से अटारी तक का देखिए साहब, दिल्ली से रात को गाड़ी चलती है 10:10 पे, ठीक, और अटारी में सवेरे पहुंचती है ये अब 7-7:45 बजे करीब पहुंचती है। तो ये तकरीबन आप कह रहे हैं कि ये 8-9 लगभग 8.5-9 घंटे का 8-9 के करीब घंटों का सफर है। और ये तकरीबन दरमियान में थी, अभी दरमियान में भी नहीं पहुंची? नहीं, दरमियान में भी नहीं थी, तो दिल्ली से तो ये पानीपत का रास्ता जो है 60-65 2.5 घंटे के करीब का है। ठीक है, और वहीं पे जाके ये धमाका हुआ। और रात का क्या वक्त था उस वक्त जब ये आपको पता चला? कोई 12 बजे के करीब का टाइम था। 12 बजे, तो फौरन फिर आपने रश किया, अपनी टीमों को भेजा वहां पे? ये देखिए उसका जो एग्जैक्ट टाइम है वो 23:55 रात को 11:55 का था। ठीक है, और फौरन आपने फिर टीमें वहां पे जाहिर है कि भेजी? बिल्कुल, हमारी बिल्कुल तैयारी से तुरंत लोग पहुंच गए वहां पे जी, और जो इंजर्ड थे उनको रश किया गया, और हमारा जो नॉर्दर्न रेलवे का स्टाफ है और सारे बड़े ऑफिसर जो हैं, GM और डॉक्टर, सब लोग वहां पे तुरंत पहुंच गए। चलें, आर के टंडन साहब आपका बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे राब्ता रहेगा जी, बहुत शुक्रिया।
थैंक यू वेरी मच। आर के टंडन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंडियन रेलवेज, नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे और वो भी बता रहे थे कि क्या सूरत हाल है, और उनसे हमने तफसीली एक ओवरव्यू लेने की कोशिश की कि इंडियन रेलवेज़ जो है वो कैसे इसको टैकल कर रही है पूरे ऑपरेशन को, और किस तरीके से जो सिक्योरिटी का मामला है वो हल किया जाता है, और किस तरीके से वहाँ पे लोगों को जो सिक्योरिटी के मामला हैं उनमें से गुजारा जाता है। क्योंकि मैं अभी भी यही समझ रहा हूँ कि वहाँ पे सिक्योरिटी का कुछ मसला हुआ है, और वहाँ पे सिक्योरिटी वो उतनी टाइट नहीं थी जितनी कि टाइट होनी चाहिए, और ख़ास तौर पे इस वजह से कि क्योंकि ये इस तरह की जो ट्रेन है ये दोनों ममालिक के साथ एक राब्ता रखती है और बढ़ाती है राब्तों को, उसमें एक टारगेट भी ये साथ साथ हुआ करती है दहशत गर्दों की कार्रवाई का, लिहाजा इसमें थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस और सेंसिटिव होने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे इसकी एक और वजह भी है कि वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब का भी दौरा भारत जो है वो भी इट्स जस्ट अराउंड द कॉर्नर, तो इस हवाले से भी इसकी एक इम्पॉर्टेंस है कि शायद ये जो डायलॉग का प्रोसेस है जिसमें हम अपने जो एक न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उनको उस हवाले से एक एग्रीमेंट करने जा रहे थे, उसको भी शायद सैबोटेज करने की कोशिश की जा रही हो, और इसका भी एक लिंक जो है वो शायद इसके साथ मिलता है। हम बात करेंगे मुख्तलिफ लोगों से मज़ीद भी और देखेंगे कि इसमें क्या क्या सूरत हाल है। हमारे साथ ये मुझे ख़बर दी गई है जो कि हमने अभी कंफर्म भी की है, और वो ये है कि भारत के रेलवे के जो वज़ीर हैं लालू प्रसाद यादव साहब, उन्होंने तस्दीक की है कि समझौता एक्सप्रेस के सानहे में 64 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये वाक़या तक़रीबकारी हो सकता है जिसकी तहकीकात की जाएगी, और वो फौरी तौर पर पानीपत पहुँच रहे हैं। ये अभी कंफर्म हुआ था इफ्तिखार गिलानी साहब के साथ, और उन्होंने बताया कि ये सिलसिला जो है वो उन्होंने कंफर्म किया है। इसके अलावा आपने ये देखा कि लालू प्रसाद यादव साहब ने यह भी कहा है कि वो तफ्तीश का जो एक सिलसिला है उसको भी जारी करेंगे, और तहकीकात का ऑलरेडी हुक्म दे दिया गया है। वो पटना से एक स्पेशल फ़्लाइट के ज़रिए वहाँ पे पहुँच रहे हैं, और ये भी उनका कहना है कि इस हादसे में हिलाक होने वालों की तादाद ज़्यादातर पाकिस्तानियों की है, और 64 के करीब लोग जो हैं वो इसमें हिलाक हुए हैं। इसमें साथ साथ ये भी है कि पुलिस ने यह भी कहा है कि ये क्रूड बॉम्ब था, टाइम बॉम्ब, जिसमें उन्होंने कहा कि अमोनियम नाइट्रेट वगैरह और पेट्रोलियम और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो डाल के इसको बनाया जाता है, और ज़्यादातर लोग जो हैं वो इस तरह के जो बॉम्ब्स होते हैं उसमें झुलस के ही हिलाक हो गए हैं। और जो वहाँ पे रेलवेज़ की जो अथॉरिटीज़ हैं उनका भी ये कहना है, आर के टंडन साहब ने ख़ास तौर पर ये कहा कि जो टिकट है वो पासपोर्ट पर दिया जाता है, और उसमें मुझे लेक्यूनस कुछ नज़र आ रहे हैं समहाउ, पता नहीं नाजरीन आपको मेरी बात शायद अच्छी ना भी लग रही हो, लेकिन मुझे समहाउ इसमें पूरा ऑपरेशन है उसमें कुछ लेक्यूनस कुछ मुझे इस तरह के नज़र आ रहे हैं कि जहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकती थी, और उनको अगर ब्रिज नहीं किया जाएगा, उनको सही टाइटन अप नहीं किया जाएगा, तो ये सिक्योरिटी के लैप्सेस इस तरह के होते रहेंगे। इसमें यह भी एक बात सामने आई कि रिज़र्व और नॉन रिज़र्व का भी एक मसला है, और उसमें भी हम देख रहे हैं कि इसमें भी कोई मसला हो सकता है। ये जो सूरत हाल है नाज़रीन, इसमें आप हमें ईमेल्स भी कर सकते हैं। एक दोबारा हम कोशिश करते हैं कि अपडेट्स ज़रा लें शोभना सिंह से, और शोभना सिंह जो आपको मैंने बताया था कि वो जाए हादसा पर मौजूद हैं, और उनसे पूछते हैं कि वहाँ पे इस वक्त क्या सूरत हाल है। शोभना जी, आर यू देयर? हेलो जी शोभना जी, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है? जाए हादसा पे आप मौजूद हैं, लोकेशन पे आप खड़ी हुई हैं, मुझे बताइएगा कि क्या सूरत हाल है, क्या हो रहा है, क्या देख रही हैं आप वहाँ पे? देखते खाना साहब, जब ये हादसा पेश आया था रात 11:55 पर, उस वक्त से ही यहाँ ट्रेनों की आवाजाही रोक दी गई थी, क्योंकि राहत का काम शुरू हो चुका था, और ट्रेन पर जली हुई बोगियां, ट्रैक पर जली हुई बोगियां खड़ी हुई थी, जिसकी वजह से आवाजाही थम चुकी थी। लेकिन धीरे धीरे जब लाशों को उसमें से निकाला जा चुका और काम खत्म हो गया, उसके बाद जो जली हुई बोगियों को आगे ले जाया गया तो ट्रैक साफ हो गया। उसके बाद जो ट्रेनें रोक दी गई थी, आवाजाही बंद हो गई थी, वो आवाजाही शुरू हो गई है। और यहाँ मौके का मुआयना करने, जायजा लेने,
जायजा लेने पहले यहाँ होम मिनिस्टर शिवराज पाटिल जी आए और उन्होंने ये माना कि इसके पीछे किसी ना किसी आतंकी साजिश का हाथ है और जो ये आग लगी है उसकी वजह बम का धमाका है और अब इस बात की तफ्तीश की जाएगी और उन्होंने जांच के आदेश दे दिए हैं। इसके अलावा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यहाँ का मुआयना किया और अब संभावना है कि कुछ ही समय में यहाँ रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद यादव भी मौके का मुआयना करने आएंगे। जी कसाना साहब। अच्छा, ये बताइएगा शोभना जी कि वहां पे जो सूरत हाल है, आप ये देख रही हैं कि जाहिर है कि इंडियन अथॉरिटीज के, खासतौर पर रेलवे अथॉरिटीज के लोग जो हैं वहां पे खड़े हुए होंगे और काम अपना कर रहे होंगे, तो ये जो मिनिस्टर्स वगैरह वहां पे दौरा कर रहे हैं, वहां पे तो अब एक्चुअली सिवाय जली हुई बोगियों के और कुछ भी नहीं होगा। डेड बॉडीज तो आपने देखा होगा कि निकाल ली गई होंगी। जी बिल्कुल, डेड बॉडीज को निकाल के यहाँ के सिविल हॉस्पिटल, पानीपत के सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया। इसके अलावा जो लोग घायल थे वो बहुत ज्यादा घायल थे, करीब 70 से 80% तक घायल थे। उनको पहले सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया था, उसके बाद अब दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में ले जाया गया है। तो अब यहाँ सिवाय जली हुई बोगियों के अलावा कुछ भी बाकी नहीं है। लेकिन हाँ, जो हादसा पेश आया है उसकी वजह क्या है, उसके सूत्र क्या है, उन सब की तफ्तीश के लिए ये पे लोग यहाँ जमावड़ा लगा हुआ है और वो तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस सब की वजह क्या थी। चलें शोभना साहबा, थैंक यू वेरी मच। आपसे हम मजीद डिटेल्स लेते रहेंगे और जो भी आपके पास अपडेट्स हों हमसे जरा शेयर करती रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। शोभना सिंह वहाँ पे रिपोर्टर हैं, मौजूद हैं वहाँ पे जाए हादसा पे, और वो बता रही थी कि होम मिनिस्टर जो हैं शिवराज पाटिल वो भी जगह का दौरा कर चुके हुए हैं और ऑब्वियसली लालू प्रसाद यादव साहब जो हैं वो भी फेडरल मिनिस्टर फॉर रेलवेज वहाँ पे जाने वाले हैं, पहुँचने वाले हैं। उन्होंने बताया कि जो मरने वाले लोग थे उनकी डेड बॉडीज़ को वहाँ पे पानीपत का जो सिविल हॉस्पिटल है वहाँ पे पहुँचा दिया गया है और जो ज़ख्मी हैं उनको दिल्ली का जो सफदरजंग हॉस्पिटल है वहाँ पे उनकी केयर की जा रही है और उनको मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो दिया जा रहा है। एक अजीब सी सूरत हाल नाज़रीन आप देख रहे हैं कि वहाँ पे किस तरीके से अब मामला जो हैं वो आगे बढ़ेंगे। तहकीकात का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। वहाँ पे अब देखा जाएगा कि किस तरीके से ये सारा सिलसिला हुआ, क्यों हुआ और उसके लिंकेजेस कहाँ पे मिलते हैं, ये भी ढूंढने की कोशिश की जाएगी। अल्लाह करे कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप भी दुआ कीजिएगा कि जो नुकसान हुआ है ये यहीं पे थम जाए और इससे ज़्यादा नुकसान ना हो और जो ज़ख्मी हैं वो जल्द अज जल्द सेहतयाब हों और वापस अपने घरों में आ सकें। और ख़ास तौर पे वो लोग कि जो उनके रिश्तेदार हैं जो इस वक्त मुख्तलिफ़ जगहों पे भटक रहे हैं और उन्हें पता नहीं चल रहा कि इन्फॉर्मेशन क्या है। हम तो फिर भी आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन जो लोग रेलवे स्टेशन पे लाहौर में या वाहगा के जो वहाँ पे इलाका है वहाँ पे जाने की कोशिश कर रहे हैं या पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि असल में सूरत हाल क्या है और क्या उनके रिश्तेदार जो हैं वो कहीं हिलाक तो नहीं हो गए नाउज़ुबिल्लाह और कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो ज़ख्मी हैं। तो ये एक अजीब सी ये जो बेयकीनी की जो कैफियत होती है, आपको मालूम है गुनाह मामलात के बावजूद इसको आप कुछ भी आप इसको कुछ नाम नहीं दे सकते, लेकिन आप इसको फ़ील कर सकते हैं और ये जो फीलिंग्स होती हैं ये इंतहाई दुख वाली होती हैं और इंतहाई दर्द वाली होती हैं। और आप दुआ करें कि उनके लिए ये आसानियाँ पैदा हों और ये जो लोग ज़ख्मी हैं वो जल्द अज जल्द सेहतयाब हो सकें। धमाके की जो तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं नाजरीन। अभी थोड़ी देर में ख़बरों का वक्त हुआ चाहता है, ख़बरें भी आप सुनिएगा, उसमें मज़ीद आपको अपडेट्स हम देंगे, लेकिन आप PTV वर्ल्ड के साथ लिंक रहिएगा, अटैच रहिएगा, आपको तमाम तफसीलात जो हैं वहाँ आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन फिर एक दफ़ा फिर आपको बताते चलें कि ये जो धमाका हुआ है पानीपत के इलाके में सोनीपत का जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर 5 किलोमीटर उससे पहले एक दीवाना गांव है जहां पे ये धमाका हुआ और भारतीय वक्त के मुताबिक रात 10:45 पर नई दिल्ली से ये ट्रेन रवाना हुई और 11:55 पर इसमें 2 धमाके हुए, आग भड़क उठी और इसमें 2 बोगियां मुकम्मल तौर पर जली हैं और इमदादी काम जो है वो शुरू हो चुका है। हम अब चलते हैं न्यूज़ के लिए, न्यूज़ सेट पे, और हम आपको अपडेट्स हैं वो बताते रहेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए नाज़रीन, और अगर कोई मज़ीद अपडेट्स हुई तो आपके साथ इंशाल्लाह शेयर की जाएंगी। अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह करे कि ये जो नुकसान है यहीं पे थम जाए, दुआ कीजिएगा उनके लिए। अल्लाह हाफ़िज़ और बहुत शुक्रिया। PTV World News is brought to you in association with Telenor. Telenor, the smart